One amongst hundreds of Uttarakhand's ghost villages, the sound of silence hits you hard as you walk through the crumbling ruins of Damgaon. Every family that once lived here deserted their homes and lands, migrating to towns and cities in search of a better life. These abandoned structures stand as grim reminders of one of the frightening reasons for the mass exodus. It is one that lush pine jungles bearing a post-monsoon glow don't necessarily denote. The groundwater table underneath Damgaon has receded at an alarming rate. A critical symptom of climate crisis brewing in thousands of Himalayan villages like these. Roughly 10 kilometers away, Kulgad village was headed towards a similar fate a few years ago. The Panera Naula, or natural spring, a perennial source of water for Kulgad's residents, had almost entirely dried up. हिमालय रीजन में जो भी हम जल स्रोतों की बात करें, क्योंकि यहाँ की 90% 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं इन्हीं स्प्रिंग्स में निर्भर है, जिसे हमारे पहाड़ों में नौला या धारा कहा जाता है या गधेरे कहा जाता है, स्ट्रीम्स कहा जाता है। विगत अगर 20 से 25 सालों की स्थिति देखा जाए, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन जो कहा जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं बारिश चक्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जिस समय बारिश होती थी 7 दिन की जो सज्जड़ लगा करते थे, वो हल्के हल्के एकदम बारिश हो रही है। अति तीव्र बारिश होने के कारण स्प्रिंग्स रिचार्ज नहीं हो पा रही। पहला कारण तो ये लगता है। कहीं नहीं, दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है जंगलों का आवरण क्षेत्र था, वो सो कॉल्ड डेवलपमेंट के कारण वो हल्के हल्के कम हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है तो जंगलों का कटान हो रहा है। एक इस कारण भी कहीं ना कहीं जल स्रोतों पर जो असर पड़ा है, जो स्प्रिंग से नौले धारों पर असर पड़ा है। 39-year-old Sarita Devi Bhandari remembers the scarcity of water in the spring when she first came to Kulgad. जब मैं यहाँ आई तब तो नौले का पानी सूख रखा था, तब उसमें नहीं था पानी, थोड़ा सा पानी था। पहले का मौसम जो था, जैसे ही बादल लगते थे खूब वर्षा हो जाती थी और 15-15, 20-20 दिन तक बिल्कुल बाहर निकलने का भी नहीं होता था, उतनी बारिश होती थी। और हम घास भी बारिश में ही काट आते थे भैंसों के लिए। अब देखो, अब ये बादल लगते लगते 1 हफ्ता हो जा रहा है, महीना हो जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है। Water through pipeline distribution reached Kulgad only in the early 2000s. Over the years, the supply became erratic and unreliable, and the Naula that had once served almost as the community's lifeline was in a pitiable state. But a timely intervention brought it back from the brink of extinction. Sarita Devi was one of the resolute community leaders responsible for its revival. Under her leadership, the community set out to understand the underlying rock structures that made it possible for the spring to exist in the first place. To resurrect the dying Naula, Kulgad's men and women organized themselves into a Jal Samiti, or a water user group. They became knowledge bearers of hydrogeology with the aid of Chirag. जी सर, एक्चुअली मैं अभी कुलगाड़ गांव में आया था। हमारा कुछ पानी को लेकर काम चला था 2015 तक आया। An organization working to recharge and rejuvenate Himalayan springs. हमारे वहाँ 3 प्रकार के पत्थर पाए गए हैं। उन्होंने ही बताया, हमें पता नहीं था। एक क्वार्टजाइट, फ्लाइट और नाइस पत्थर की जो है, मतलब थोड़ी थोड़ी मिल रही है जानकारी उसमें, और तब हमें भी पता चला। तो जो है क्वार्टजाइट पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हमारे पहाड़ में उससे डासी ढूंग कहते हैं, और फ्लाइट जो है उससे बुसिल ढूंग कहते हैं। और जो फ्लाइट होता है वो तो पानी को अपनी ओर को सोखता है उस समय, फिर धीरे धीरे उसकी परतों में से पानी निकलता है तो वो नौले में आता है। Between 2013 and 2014, the Jal Samiti and Chirag designed a host of different methods to recharge and manage the spring's catchment area and prevent water runoff.
By doing this, they hope to increase the rate of water infiltration and thereby enhancing spring discharge. %20 of the total cost was contributed by the water user group in the form of Shramdan or labor. For months, the men and women were hard at work, building contour trenches, check dams and percolation ponds, and planting hundreds of native saplings that would help augment groundwater recharge and storage. The result has been a threefold increase in spring discharge in the Panera Nala between the summers of 2015 and 2020, easing the lives of the families dependent on it. Moreover, the women of Kulgard's Jal Samiti, equipped with a deep understanding of the geology of their spring shed, now help Chirag train water groups from other villages. वैसे बड़ा अच्छा लगता है कि किसी को जानकारी देना और किसी से जानकारी लेना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी जानना चाहिए कि हमने क्या करना है, कैसा करना है, पानी के बारे में क्या होता है, पानी कितना महत्व होता है। तो इसके बारे में जो उन लोगों को जानकारी दी हमें वो भी काफ़ी अच्छा लगा, और उन्होंने जो हमें बताया वो भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। इतना आगे जाकर इतना बोल पाऊँगी करके मुझे कभी विश्वास नहीं था खुद पर कि मैं भी इतना बोल पाऊँगी। थोड़ा चाहे गांव वाले ना भी दे तो बाहर से सम्मान भी मिलता है। अच्छा लगता है ये सुन के कि हाँ ये महिला खुद जागरूक है करके। But there is a long road ahead in the revival of Himalayan springs. The problem appears especially grim in Uttarakhand, where in the Almora region alone, the number of functional springs have reduced to 1/6 its original number in the last 100 years. सामान्य रूप से जो बाहर जो समाज है वो समझता है कि जो हिमालय में जो पानी है वो जनरली हिमालय का पानी है, यानी कि बर्फ़ से जो पानी पिघल के वो पानी। एक्चुअल में जो हमारे जो पहाड़ों में जो नौलेधारे बने हैं वो एक्चुअल में एक तरह का ग्राउंड वाटर है। जो बारिश का पानी है वो ज़मीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट होके परकुलेट होके किसी सिस्टम में स्टोर होके वो स्प्रिंग के रास्ते बाहर निकल रहा है, यानी कि वो पानी किसी भी रूप से ग्लेशियर से नहीं संबंधित है। वो केवल क्या है, जल चक्र के आधार पे एक सिस्टम है जो उसका आउटपुट के रूप में पानी बाहर दे रहा है। इन्हीं छोटी छोटी स्प्रिंग को जुड़ के स्ट्रीम बनती है और छोटी छोटी स्ट्रीम को मिल के बड़ी नदियाँ बनती हैं। अगर ये हल्के हल्के स्प्रिंग डिक्लाइन हो जाती तो स्ट्रीम डिक्लाइन हो जाएंगी, अगर स्ट्रीम डिक्लाइन हो जाती तो रिवर्स डिक्लाइन हो जाएंगी। इसलिए अभी ज़रूरत है कि हम उसको समझें और उन स्प्रिंग यानी कि जो भी नदियां हैं, नदियों के रिचार्ज एरिया में जो भी स्प्रिंग है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि हमारा उत्तराखंड में जो भी गांव हैं और साथ साथ शहर हैं वो आने वाले समय में वाटर क्राइसिस की कंडीशन से बच सकें। Kulgard's barefoot hydrogeologists represent what is possible if a community is armed with the knowledge and tools to manage their own natural resources.